Hello everyone. So welcome to another video of Premix on Indian economy, where we are going to discuss the 5 questions MCQs related with Indian economy. So आज के वीडियो का थीम every day you might be seeing that we are having a theme wise discussion. So today's video's theme is Reserve Bank of India. RBI से related questions करेंगे. 5 questions we'll do. क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है इस थीम का? दिस ईयर 2025 में 90th एनिवर्सरी मना रहा है आरबीआई अपनी. ऑलराइट, सो आरबीआई स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 1st of April 1935 through the act RBI Act 1934. So 2025 marks the 90th anniversary of RBI. So this is a very significant event. और इस केस में यहाँ पे few days back Honorable President of India श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी released a special postage stamp regarding this. ठीक है, तो let us see the 5 questions on Reserve Bank of India. So again, I will say that whatever marks you are getting, all right, just comment in the comment box, write down in the comment box कि कितने marks मिल रहे हैं. All right, let us begin. So question number 1, it says that with regard to the history and evolution of RBI, consider the following statement. All right, history and evolution of RBI. It was established based on the recommendation of Hilton Young Commission. Statement 2, it was established as private shareholders bank with a paid up capital of rupees 10 crores. Statement 3, the central office of RBI was initially established in Mumbai. Statement 4 says that after its formation, it took over the management of government accounts and public debt functions from the Imperial Bank of India. So these are the 4 statements, and we have to tell that which of the statement given above are correct. Okay, just see the statements. All right. So first statement that it was based on the recommendation of Hilton Young Commission. So it is a correct statement. All right. So British government ने एक commission बनाया था, which has recommended that India should have a central bank to manage all the things. तो Hilton Young Commission उन्होंने बनाया था, which said that, which recommended the establishment of central bank, that is RBI, to the British government. So first statement is correct. It was established as private shareholders bank with a paid up capital of rupees 10 crores. So private shareholder banks, yes, initially private held bank था RBI, but जो paid up capital थी, that was not 10 crore but 5 crores. तो ये बहुत one important lesson which you should always remember. क्वेश्चंस को बहुत क्लियरली, बहुत अटेंटिवली पढ़ना है. ऑलराइट, एंड यू हैव टू रीड इट फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, एवरी स्टेटमेंट. अदरवाइज कई बार आपको जो स्टार्टिंग में ही जैसे पढ़ा और लगा कि प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक, यू थॉट कि ओके इट इज करेक्ट. तो दैट इज व्हाट, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड यू हैव टू रीड एवरी स्टेटमेंट वेरी वेरी केयरफुली. ठीक है, so 5 crore tha, not the 10 crore. So initially paid up capital was 5 crores. All right. The central office of RBI was initially established in Mumbai. तो ये मुंबई नहीं था. जब फॉर्म हुआ था तो उस समय जो सेंट्रल ऑफिस था, that was in Calcutta, and it was transferred to Mumbai. All right. It was transferred to Mumbai in 1937. तो इनिशियली जो ऑफिस था, दैट वाज इन कैलकाटा. सेंट्रल ऑफिस इज वन वेयर द आरबीआई गवर्नर सिट्स एंड फॉर्मुलेट्स द पॉलिसीज, जहां पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. फोर्थ, आफ्टर इट्स फॉर्मुलेशन it took over the management of government accounts and public debt function from the Imperial Bank of India. ऑलराइट, तो जब आरबीआई बन गया तो उसने कुछ फंक्शंस ले लिए. कंट्रोलर ऑफ करेंसी मैनेजमेंट का फंक्शन ले लिया था, विच वाज फ्रॉम कंट्रोलर ऑफ करेंसी. मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट फंक्शंस ले लिया था, विच वाज फ्रॉम
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। जब आरबीआई बना तो करेंसी मैनेजमेंट का फंक्शन जो कंट्रोलर ऑफ करेंसी से ले लिया था, गवर्नमेंट अकाउंट का मैनेजमेंट एंड पब्लिक डेट फंक्शंस का मैनेजमेंट, ऑलराइट, पब्लिक डेट, मैनेजिंग पब्लिक डेट, ये दोनों चीज उसने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से ले ली थी। तो सिंस इट इज अ 90th एनिवर्सरी, तो थोड़ा सा हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कब फॉर्मेशन हुआ, कैसे फॉर्मेशन हुआ, किस कमीशन ने रिकमेंड किया, कब नेशनलाइज हुआ, रिलेटेड टू नो सेंट्रल ऑफिस कब कहाँ था, तो दैट इज व्हाट द आइडिया। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। सो हियर व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर? तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट, ऑलराइट। सो ऑप्शन डी 1 एंड 4, 1 एंड 4, ऑलराइट। तो यहीं पे एक थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं कि कमेंट में बताइए कि आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से कब होता है, ऑलराइट, कब से कब होता है। एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वेदर इट इज फ्रॉम जैन टू दिसंबर और इट इज फ्रॉम जुलाई टू जून और इट इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च और कोई अदर जो आपको लगता है कि इसमें से भी नहीं होता है, तो लेट अस से डी नन कर देते हैं। यहां पे बताएंगे कि आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है, आने चाहिए, ऑलराइट। कमेंट में लिख के जरूर बताइए, ठीक है, ऑलराइट। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ये थोड़े से ब्रीफ हिस्ट्री है, यू कैन गो थ्रू दिस, ऑलराइट। नेक्स्ट, which among the following financial institutions are regulated by RBI? तो यू नो दैट आरबीआई परफॉर्म्स अ लॉट ऑफ फंक्शंस और एक उसमें जो काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है दैट इज मैनेजिंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ऑलराइट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, प्राइमरी डीलर्स एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ऑलराइट। तो जस्ट ट्राई टू सी द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू सी कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए, ऑलराइट। क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, तो ये बातें कर रहे हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है? बेसिकली विच टेक बैड डेट फ्रॉम द, विच बाइज द बैड डेट फ्रॉम द बैंक, ठीक है, और फिर उसको वो ट्राई टू रिकवर मनी फ्रॉम द बैड एसेट्स। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एआरसी बोलते हैं। तो दे आर regulated by the RBI, asset reconstructions company, alright, they are regulated by the RBI, ठीक है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, जैसे आप कभी बैंक से लोन लेने जा रहे हैं या बोरो करने जा रहे हैं तो आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है दैट इज यूजली नो बैंक ट्राइज टू गेट फ्रॉम द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। तो आप बारोवर है, बैंक लेंडर है, लेंडर गेट योर क्रेडिट इंफॉर्मेशंस बिकॉज आपने सेवरल बैंक्स में आपके अकाउंट्स हो सकते हैं, आपने सेवरल क्रेडिट कार्ड लिए हो सकते हैं, आपने सेवरल डिफरेंट बैंक से बोरो कर रखा होता है। लेट अस से व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम द एसबीआई, तो एसबीआई माइट टेक योर क्रेडिट हिस्ट्री फ्रॉम क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, जिसका बहुत प्राइम एग्जांपल है सिबिल। कई बार सिबिल स्कोर देखते हैं आप, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द आइडिया। तो दीज आर ऑल्सो regulated by RBI, credit information companies. Next, credit rating companies, credit rating agency, CRA जिसको बोलते हैं, alright. So these are not regulated by RBI, rather these are regulated by SEBI, alright. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो रेटिंग्स देती हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस से एनी कंपनी या गवर्नमेंट भी सोवरेन क्रेडिट रेटिंग आप देखते होंगे, या गवर्नमेंट की भी क्रेडिट रेटिंग करते हैं। नो एनी कंपनीज which is going to take money, which is going to take money from the investors, तो इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं? क्रेडिट रेटिंग ने उसको क्या रेटिंग दी है, वेदर दे आर गिवन पॉजिटिव रेटिंग कि एडवर्स रेटिंग मिला है। इससे क्या पता लगता है? इससे दे गेट टू नो, द इन्वेस्टर्स गेट टू नो बिफोर हैंड कि दे आर द मनी विच दे आर पुटिंग इन, जो वो लेंडर्स को दे रहे हैं, सॉरी बोरोवर्स को दे रहे हैं, द बोरोवर्स हैज द कैपेसिटी टू रीपे और नॉट।
तो उसी लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है विच आर रेगुलेटेड बाय सेबी। तो ये ध्यान रखेंगे, इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ठीक है। प्राइमरी डीलर्स अगेन दे आर रेगुलेटेड बाय द नो आरबीआई, बेसिकली टू स्ट्रेंथिंग और डीपनिंग द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसमें ये वर्क करते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, दीज आर ऑल्सो नो रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ठीक है। तो इन सारों में ओनली एक्सेप्ट 3 और सारे दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 एंड 5, ठीक है। तो अगेन आई विल से दैट कि ध्यान से पढ़ेंगे ऑप्शन सारे, क्यों जो भी ऑप्शंस हैं यू हैव टू लुक इट वेरी वेरी अटेंटिवली, ठीक है। So all these things, asset reconstructions company, they are provided under SARFAESI Act and they are regulated by the RBIs. Similarly, credit information companies जो एक important है कि 4 RBI licensed CIC जो इंडिया में है 4 है, ऑलराइट। सो ट्रांस यूनियन सिबिल जो आप सिबिल स्कोर देखते हो, इक्विफैक्स इंडिया, एक्सपीरियन एंड CRIF हाई मार्क, ये 4 RBI लाइसेंस्ड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं। सिमिलरली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, तो जो मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया आर क्रिसिल, इकरा, केयर रेटिंग्स, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च जिसको इंडिया आरए बोलते हैं, एंड ब्रिकवर्क रेटिंग्स, ये इंडिया की अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। अगर आप 3 ग्लोबल मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात करोगे जो ग्लोबली हैं, रिनाउंड है, फर्स्ट इज स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P ग्लोबल रेटिंग्स, मूडी इन्वेस्टर सर्विस एंड फिच रेटिंग, ये 3 ग्लोबली रिनाउंड हैं एंड यूजली दे रेट द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सिमिलरली प्राइमरी डीलर्स is there, they are regulated, they are licensed by the RBIs, all right, so that is what the idea, and microfinance institutions, ठीक है। So these are the things. Let us move to the next question. Which of the following functions are performed by RBI acting as debt manager to the government, ठीक है। तो RBI act as a debt manager to the government, ये उसका functions है, मेन फंक्शन है। उसके अंदर ये क्या क्या चीजें करता है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, ठीक है। सो इट मैनेजेस द पब्लिक डेट एंड इश्यूज न्यू लोन्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऑलराइट। तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ऑलराइट। तो जो गवर्नमेंट का इंटरनल डेट है दैट इज मैनेज्ड बाय द आरबीआई, और कोई गवर्नमेंट को नया लोन लेना है तो आरबीआई इज एक्टिंग एज ए नो, आरबीआई विल इशू दैट लोन ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इट इशूज न्यू रूपी लोन्स एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लोन्स, तो ये सारी चीजें यस आरबीआई करता है बिकॉज दे आर एक्टिंग एज ए debt manager to the government, all right। Then it provides ways and means advances to the government to meet the temporary mismatch in their receipt and payments, तो ये भी आरबीआई करता है ways and means advances, because अभी डेफिसिट फाइनेंसिंग बंद हो गई है, तो दैट इज वाई जब से वो बंद हो गई है 1997 से, तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस का प्रोविजन आ गया है जिसमें यू नो आरबीआई इन कंसल्टेशन विथ गवर्नमेंट पहले से ही बता के रखता है कि दीज आर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस में आपको जाएगा जब भी आपको थोड़ा मिसमैच हो जाएगा रिसीट और पेमेंट में और आपको पेमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, लोन्स की जरूरत पड़ेगी, तो शॉर्ट टर्म लोन ये देता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू टू द गवर्नमेंट, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो एंड टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, तो ये भी करता है। It also arranges for investment of surplus cash balances of the government, अगर गवर्नमेंट के पास अपना थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा हैं उनके पास, उनको कहाँ इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमा सकते हैं, that is also seen by the RBI, all right, and it issues licenses to primary dealer, ठीक है। तो yes, all these functions are performed by RBI when it is acting as a debt manager to the government, manages public debt, रूपी अगर नया लोन देना है
पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जानी है, रीपेमेंट जानी है, वो सारी चीजें आरबीआई देखता है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो भी रिलेटेड है वो आरबीआई देखता है। कुछ सरप्लस कैश को इन्वेस्ट वगैरह करना है वो आरबीआई देखता है, एंड इश्यूज लाइसेंसेस टू प्राइमरी डीलर्स। सो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 ओनली। ऑलराइट, तो ये है यहाँ पे नो दिस, एक बार इसको सी कर लेंगे यहाँ पे। दिस हैज टू बी सी, ऑलराइट, नॉट डी बट दिस हैज टू बी सी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज कर लेंगे यहाँ पे। करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी, ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म, तो यू कैन चेंजेस टू सी। ठीक है, तो दिस आर द थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, RBI derives its powers, roles and responsibility from which among the following statutes? ठीक है, तो आरबीआई बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करता है, ऑलराइट, एंड इट डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम द डिफरेंट स्टैट्यूट्स। तो उसका नाम लिखा है, उसको आपको बताना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1919 एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो क्या कौन कौन से ये सारे जो एक्ट्स हैं आरबीआई को पावर्स देते हैं, कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं? तो यहाँ पे ऑल दीज थिंग्स provide powers, certain roles and responsibilities to the RBI. All right. So Reserve Bank of India Act 1934 जो सारे मेजर प्रोविजंस ऑफ पावर्स हैं वो यहाँ से निकलते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट्स, इफ बैंक आरबीआई हैज टू गिव सर्टेन लाइसेंसेस, बैंकिंग लाइसेंसेस वो यहाँ से आ जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज जो मैनेज करता है, आरबीआई इज कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, वो सारी चीजें फेमा उसको बहुत से पावर्स देती है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है। एंड देन पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, पेमेंट रेगुलेटर इन इंडिया, हु इज दैट इंस्टीट्यूशन, विच इज दैट इंस्टीट्यूशन? तो आरबीआई इज दैट इंस्टीट्यूशन। सो ये चारों जो है एक्ट, ऑलराइट, दे प्रोवाइड सर्टेन पावर्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द आरबीआई। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ठीक है, so these are the some of the list of the acts जो कि which is governed or administered by RBI. तो RBI Act 1934, Public Debt Act 1944 which has been replaced by Government Securities Act 2006, Government Securities Regulation 2007, FEMA 1999, SARFAESI Act 2002, Credit Information Companies Regulation Act 2005, Payment and Settlement Act 2007 and Factoring Regulation Act 2011। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं, ऑलराइट। तो दिस इज देयर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इनमें से कौन से फंक्शन हैं? इट इश्यूज बैंक नोट्स इन इंडिया। सेकेंड, इट एक्ट्स एज बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज टू द स्टेट गवर्नमेंट। Third, it act as banker to banks. And fourth, it act as a regulator to money market and capital market in India. Alright, तो आपको बताना है कि which of the following are the functions of RBI. Right. So first one, it is a correct statement. Yes, issues bank notes in India. Alright. So RBI is the sole authority to issue बैंक नोट्स इन इंडिया एक्सेप्ट क्वाइंस एंड रुपी 1 नोट, जो 2 rupees 2 से सारी जो होती है नोट्स, दैट इज इशूड बाय द आरबीआई। तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इट इज अ बैंकर टू द सेंट्रल बैंक एज वेल एज टू द स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी कई बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ऑलराइट। सो इट इज एक्टिंग एज ए बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज टू द स्टेट गवर्नमेंट। उनका एक्टिंग एज ए बैंकर है, तो आप उनके अकाउंट्स खुलते हैं, उनके पैसे लेन देन जो भी होता है वो सारा कुछ आरबीआई देखता है। सिमिलरली इट एक्ट एज ए बैंकर टू बैंक्स ऑल्सो, ऑलराइट। तो आरबीआई इज ऑल्सो एक्टिंग एज ए बैंकर टू बैंक्स ऑल्सो। इसी में एक ने आरबीआई ने पूछा हुआ था कि यूपीएससी ने पूछा हुआ था कि आरबीआई एक्ट एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, alright, so that is one of the thing related with banker to banks. So RBI is also acting as a banker to banks, alright.
And last is it act as a regulator to money market as well as capital market in India. तो मनी मार्केट यस, बट कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेटर होता है दैट इज सेबी, राइट. सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ठीक है, तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हियर. तो हियर द correct is 1, 2, and 3 only. All right, 1, 2, and 3 only. Option B is correct here. All right. So these are some of the things related with RBI. So again, I will say that RBI in the present context, since it is celebrating the 90th anniversary, so it becomes a very significant, very important vis-a-vis prelims examination. Okay, chalo. I hope you have learned something in this video. I will see you in the next video. Thank you, everyone.